Okay, guys, let's start with today's lecture. So today we are going to see how many types of orders we can place in a market through the brokers or what are that platform which is available with us. Fine. So basically, if I just we cannot just classify on one basis. There are different types of orders actually. But if I just classify it broadly, then we can say that there are two kind of orders, like a market order and the limit order. Okay, market order and the limit order. So these are the two kind of orders we can place. Okay, so now whenever I say the market order, what do you mean by this one? It's just like this one. Let's suppose I want to buy Infosys का share. इन्फी का शेयर मुझे बाय करना है. ठीक है, लेट्स सपोज इस प्राइस इज अराउंड 1725 समथिंग. नाउ द मार्केट प्राइस इज 1725. Try to understand. Fine. So now let's suppose I just want to buy this Infica shares. I want to buy 100 shares. Getting it? Okay. And if I just place a market order for this one, now what are that LTP? What do you mean by LTP? What do you mean by LTP? Latest trading Yeah. price. So latest trading price, but when I just put a order is what is was 1725. On the screen I can see that that particular order ka price is 1725. The share ka price is 1725. Okay. And if I just place a buy order, yeah, basically you can have a buy and a sell order only. Okay. So let's suppose if I just place a buy order for the Infosys of 100 shares, try to understand. Okay. But I'm putting that market order, means I'm just keeping take on this market order. Okay, so what will happen is that now in this case, now though that current share ka price is showing that 1725 something. Okay, so now you will just transfer this particular order or what are that order will to the exchange. Okay, so now whatever your broker ka platform is, okay, so that platform will transfer it to the exchange ki this particular guy want to buy 100 shares of Infosys. Okay, and that too at a market price. It's a market price. Okay, so whatever that market ka price at that particular moment for that Infosys, so at that particular price your shares will get in your account. Are you getting it? Okay, so now what will happen in this case? Let's suppose currently while placing the order, if you see the price is 1725, and whenever that order is getting executed, that time let's suppose that market price for this particular Infosys is 1730, then your order will execute at 1730. Try to understand. Try to understand. Try to understand. ठीक है, सो इट्स नॉट कि मतलब हाँ मैंने 1725 पे देखा था और मैंने ऑर्डर प्लेस किया तो मुझे आई वांट ऑल द 100 शेयर्स एट 1725 ओनली. नो, इफ इट इज अ मार्केट ऑर्डर, देन जब तेरा मतलब एग्जीक्यूट होगा, अब व्हेन दिस पर्टिकुलर ऑर्डर विल गेट एग्जीक्यूट, आई वांट टू बाय दैट 100 शेयर्स, व्हेन इट विल गेट एग्जीक्यूट, मार्केट सॉरी पर्टिकुलर ट्रेड एग्जीक्यूट कब होता है और ऑर्डर एग्जीक्यूट कब होता है. इट्स जस्ट लाइक नाउ यू आर अ बायर, नाउ देयर मस्ट बी सम सेलर्स आल्सो ना. ठीक है, अभी सेलर ऐसा नहीं रहेगा, मतलब यू विल नॉट गेट कि सेलर हाँ उसको 100 शेयर्स ही बेचना है. ट्राई टू अंडरस्टैंड. देयर विल बी सम शेयर हु वांट टू सेल 10 शेयर्स, देयर विल बी सम सेलर हु वांट टू सेल let's suppose 20 shares and likewise. So you will know that market will not, or you may say the exchange will not wait for a seller which is actually going to sell that exact 100 shares. Try to understand. ठीक है, मार्केट को क्या करना है, कुछ भी करके इन लोगों से लेके मतलब जस्ट काउंट करके 100 शेयर्स तुझे देना है. Are you getting it? Okay. So what happens is that whenever you want to buy 100 shares, it will not execute at a time all the 100 shares. Try to understand. It will just go in a bunch. मतलब पहले 10 shares कुछ तो 1725 पे गया. ठीक है, next we got that 20 shares at 1730. Let's 30 shares we got, let's suppose at 1710. So it may go down also that price. ठीक है, बट एट दैट टाइम मार्केट में जो भी प्राइस है और वो टाइम पे मतलब वो बाय करेगा एंड दैट प्राइस यू विल बी गेटिंग. ट्राई टू अंडरस्टैंड. ठीक है, सो दैट डिपेंड्स ऑन अ सेल, मतलब इफ यू वांट टू बाय देयर शुड बी सम सेलर्स आल्सो. ठीक है, तो सेलर्स से मतलब वो 100 शेयर्स लेंगे एंड वो तुझे देंगे. गेटिंग इट? ठीक है, सो मार्केट ऑर्डर मींस व्हाट, वो टाइम पे जो भी मार्केट में प्राइस चलता रहेगा उस टाइम पे तू बाय करेगा. आर यू गेटिंग इट? ठीक है, सो दो यू पुट द 100 शेयर्स का order at 1725, but whenever you see that average price, because normally they say average price, because all your that shares, that 100 shares may get buy at different price. Are you getting it? That they may get by at a different price. Okay. So when you say that at last that average price for this 100 shares maybe like 1730 or 1720 or anything. Okay. Yeah, but it will not deviate more. That depends on the share. वो share कितना deviate होता है. Yeah, if that price changing drastically, जैसे अपन ने देखा कुछ shares, I think some days back we have seen that Z Entertainment वो 40% भी ऊपर गया था. हाँ, ड्रास्टिकली चेंज हो रहा है तो फिर इधर चेंज हो जाएगा, मतलब ये प्राइस में डिफरेंस आ जाएगा. मतलब जिस प्राइस में मतलब जब मैंने प्लेस किया था ऑर्डर उस टाइम पे प्राइस किया था और जब मैंने बाय किया उस टाइम पे प्राइस किया. गेटिंग इट? ठीक है, सो मींस व्हेनेवर आई प्लेस अ मार्केट ऑर्डर, होता क्या है, जो मार्केट मतलब जो प्राइस पे तूने मतलब एंटर मतलब ऑर्डर प्लेस किया है,
So you will not get all the shares at that particular price only. वो कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है, because वो जब तेरा this particular order execute होगा, so that time पे market पे क्या price है, that will decide मतलब तेरे share का buying price क्या होगा. Getting it? So that's why it's called the market order. Market में जो भी price है उस time पे मतलब वो particular price पे तू लेगा. Getting it? Okay, and what do you mean by limit order is that now in the limit order, let's suppose now that Infosys ka price is 1725, but I want to buy at 1700. Try to understand 1700. Okay, so I will just then in that case I will just put a limit order. Try to understand. I will just put a limit order. Okay, so now that currently that market particular price or LTP for the Infosys is 1725, and I want to buy at 1700, so I will just put a limit order. So in this case, what happens is that now if you are placing the order for the 100 shares, okay, so your particular this order will be open in a market. It will be open in a market, but will not get executed at 1725. It will just wait for that particular share to come down at 1700. Getting it? Okay, it will just wait for some time. It will just wait for that Infosys का price to come down to the 1700, and जब 1700 होगा तो ही execute होगा. Are you getting it? Okay, and in this case you may just you can just make sure कि yes मुझे जो भी shares मिलेंगे 1700 पे ही मिलेंगे. Are you getting it? So in this case if you are putting a limit order, then you are sure if I am getting that 100 shares, then all that 100 shares will be at 1700. Okay, once again it may be possible, it may happen कि you may not get all the 100 shares in one shot. ऐसे हो सकता है पहले 10 शेयर्स मिले, बाद में 20 मिले, बाद में 30 मिले, बाद में 40 मिले, बाद में 50 मिले. ठीक है, सो एट द एंड ऑफ द डे कब तक तब तक तुझे मतलब 100 शेयर्स मिल जाएंगे, या अगर उसका प्राइस इन्फोसिस का प्राइस 1700 हिट किया तो. ठीक है, बट ऐसा हुआ कि लेट्स सपोज 1725 पे मैंने एक्चुअली ऑर्डर लगाया था, 1700 का प्राइस चालू हुआ और 1700 पे आया ही नहीं. सो इन दैट केस योर ऑर्डर विल नॉट गेट एग्जीक्यूट एट ऑल. ट्राई टू अंडरस्टैंड. ठीक है, वो ऑर्डर तुम्हारा एग्जीक्यूट नहीं होगा एंड एंड ऑफ द डे वो ऑर्डर कैंसिल हो जाएगा. Getting it? ठीक है, सो मार्केट मतलब व्हाट इज द डिफरेंस इन दिस टू कि मार्केट इफ आई जस्ट प्लेसिंग अ मार्केट ऑर्डर, सो देयर आर हाई चांसेस योर ऑर्डर विल गेट एग्जीक्यूट. देयर आर हाई चांसेस दैट योर ऑर्डर विल गेट एग्जीक्यूट. हाँ, बट जो भी एलटीपी था वो प्राइस पे नहीं रहेगा, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे रहेगा. इट मे बी अप, इट मे डाउन आल्सो, डिपेंड ऑन वो प्राइस कितना वेरी कर रहा है. ठीक है, एंड लिमिट ऑर्डर में यू कैन एंश्योर यू विल बी गेटिंग दैट शेयर एट दिस पर्टिकुलर प्राइस ओनली, बट your chances of getting execution of that particular order get मतलब it reduces. Are you getting it? ठीक है, अगर वो शेयर का प्राइस पर्टिकुलर वो मतलब 1700 पे दिन भर में नहीं आया, then you will not get or your order will not get executed. It will be open throughout the day, but अगर वो प्राइस अगर 1700 पे नहीं आएगा तो execute नहीं होगा. ठीक है, and at the end of the day your order will get cancelled. ठीक है, understood the difference between the market order and the limit order? Yes sir. पक्का everyone? मार्केट ऑर्डर चीज के, लिमिट ऑर्डर चीज के. Yes, किसी sir. को भी डाउट रहेगा तो प्लीज आस्क, बिकॉज़ आई एम गोइंग अहेड देन. ओके, सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस मार्केट एंड लिमिट ऑर्डर. ठीक है, देन वी आर हैविंग अनदर टाइप. किसी को डाउट है? So actually I have one small doubt. बोला. So actually अगर ये मार्केट लिमिट प्राइस अगर हम लोगों ने सेट किया 1700 और अगर वो सपोज शेयर एकदम नीचे 1700 से भी नीचे गया, then what will happen? यस, देन आल्सो यू विल गेट द शेयर. उसके 1700 के नीचे गया तो भी मिलेगा. ओके ओके. ठीक है, तो भी मिलेगा. तो मतलब हाँ, तो भी अभी कैसे होता है मतलब इसमें यू वांट टू बाय एट 1700 एंड उसके अगर नीचे तो एक्सचेंज एग्जीक्यूट करेगा, बिकॉज यू आर गेटिंग एट लोअर प्राइस ना, बट 1700 के ऊपर कभी नहीं एग्जीक्यूट होगा. आर यू गेटिंग इट? यस सर, यस सर. ठीक है, या फाइन, गुड वन. ठीक, सो दिस इज हाउ दिस पर्टिकुलर लिमिट ऑर्डर विल एग्जीक्यूट. मतलब इसमें लिमिट में यू कैन जस्ट एंश्योर कि 1700, अदरवाइज इसके नीचे ही एग्जीक्यूट होगा ऑर्डर, उसके ऊपर कभी नहीं होगा. फाइन. हाँ, बट मार्केट ऑर्डर में बोल नहीं सकते. बट मार्केट ऑर्डर में एडवांटेज क्या है कि तेरा ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा ही होगा, यू विल गेट दैट शेयर्स. एंड लिमिट ऑर्डर में उसके चांसेस प्रोबेबिलिटी थोड़ा कम है. Getting it? So this is the one kind. This is the main major classification of the order: market order and the limit order. Okay. Then, as you have seen in this Money Buy, it may not be the same for all platforms or all the brokers. They just call it something different also. That depends on जो भी platform में broker का उसके ऊपर. ठीक है. Now there are another types of orders like good for day. You might have seen this on Money Buy, I think. Good for day, then good till date, and IOC. ठीक है, there are three more orders like good for day, good till date and IOC. ठीक है, मतलब कैसे होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल वो ऑर्डर के लिए टू डिसाइड मार्केट प्राइस पे चाहिए कि लिमिट प्राइस पे. ठीक है, उसके बाद टू डिसाइड गुड फॉर डे चाहिए, गुड टिल डेट चाहिए कि IOC चाहिए.
ठीक है. Now हाँ मतलब every it's not कि every time these options will be available to you. That depends once again on a broker. कुछ कुछ broker ये good till trade वगैरह available नहीं करते. ठीक है. This is not available with that particular some brokers. Getting it? ठीक है. Now what do you mean by this one? Good for day is that now whenever I place an order, let's suppose I just want to buy Infosys so shares at 1700 and current market price is 1725. ठीक है. And if I'm just putting a limit order, so now your order will be on or your order will be open till end of the day, means so till 3:15. Now once again this time differ for different brokers. Some allows up to the 3:30 or some allow up to the 3:25 likewise, but 3:15 minimum होता ही है सबका. Okay, so now if I just place this order for the good for day, then now this particular order will be active till 3:15, and whenever your price is getting at 1700, it will get executed. Okay, so that is called the good for day. It will just open for entire day, and जब भी वो शेयर का प्राइस 1700 पे आएगा वो execute होगा. If it is a limit order. ठीक है. Market order भी you just put it for the good for day. It's just like वो entire day में आपको 100 shares मिलेंगे likewise. ठीक है. Now good till date means what? Now let's suppose as I told कि Infosys का price 1725 getting it. ठीक है. And let's suppose I just want to buy at 1600. That is also possible. So I will just put this particular price me I want to buy at 1600 100 shares. ठीक है. And I just want to keep this order active till let's suppose today is the 28 September. So I just want to keep it active up to the 10th of October. Now this particular window period is also depending on the broker. वो कितने दिन का window देते हैं. 5 दिन का, 10 दिन का, 1 महीने का, 2 महीने का. I think 5 पैसा give me around 2 महीने का window. ठीक है. So it's a good till date order. Now this is मतलब is actually good kind of service which is provided by the brokers. Once again, this is not provided by all the brokers. 5 पैसा provide this one. ठीक है. So what I do is that if I feel कि मतलब ये particular share बहुत ऊपर गए, अब ये नीचे आने वाले. ठीक है. तो लेट्स सपोज अभी Infosys 1725 बहुत ऊपर गए, सो आई फील कि अभी ये 1600 पे भी आ सकता है. ठीक है. सो आई जस्ट प्लेस दिस पर्टिकुलर ऑर्डर गुड टिल डेट. ठीक है. सो आई जस्ट पुट अ लिमिट ऑर्डर फॉर 1600. ठीक है. एंड इन दैट गुड टिल डेट, fine. So I just put it, let's suppose up to the 10th of October. Getting it? So means what? Now your order will be active till 10th of October. Getting it? And up to the 10th of October, कभी भी अगर let's suppose तेरा price Infosys का price अगर 1600 चला गया, then you will your order will get execute. ठीक है. एंड अगर 10th of October तक ये प्राइस आया ही नहीं, then after that 10th of October मतलब 10th of October के 3:15 को तेरा ऑर्डर कैंसिल हो जाएगा. Getting it? So what is the advantage of this one is that, let's suppose if you're not having time to track that particular share, or if you're not having that time to check the market every day, because 9:30 to 3:15 यार working time रहता है, तो फिर people busy भी रहते हैं. So in that case they just take advantage of this particular order good till date. वो just लगा के छोड़ देने का, अगर वो प्राइस आया तो ले लेगा, otherwise नहीं ले लेगा. Getting it? So if you're not having a time to just keep on eye on a market, तो फिर we just go for this particular order good till date. ठीक है. वो लगा के छोड़ दो, अगर आया तो एग्जीक्यूट होगा, नहीं तो फिर कैंसिल हो जाएगा. Getting it? So this is called the good till date. And there is one more which is called the IOC. अब IOC क्या होता है कि इसको अलग से इमीडिएट और कैंसिल. इमीडिएट और कैंसिल मतलब जैसे मैंने ऑर्डर प्लेस किया उसी टाइम पे एग्जीक्यूट होना तो हो, अदरवाइज कैंसिल कर. ठीक है. Now this is actually used when shares are going rapidly down and all. ठीक है. When it is drastically changing in a price. ठीक है. Why? Because let's suppose now Infosys once again I want to sell at 1700. I want to sell now. I just want to sell up. I want to sell at 1700. ठीक है. And if it is going rapidly down, ठीक है, रैपिड डाउन मतलब 1700 का 1500 देन 1000 वगैरह भी हो रहा है. मतलब कुछ तो विसल ब्लोअर आ गया वो पर्टिकुलर शेयर में, कुछ तो बैड न्यूज आ गए. ठीक है. एंड उसकी वजह से वो ड्रास्टिकली डाउन जा रहा है. गेटिंग इट? ठीक है. सो इन दैट केस लेट्स सपोज मींस अगर प्राइस अभी 1700 चल रहा है एंड आई जस्ट वांट टू सेल इट एट 1700 ओनली, सो इन दैट केस आई विल जस्ट प्लेस दैट आईओसी ऑर्डर. सो इमीडिएटली अगर एग्जीक्यूट हुआ तो ठीक है, अदरवाइज कैंसिल कर दो. दिस कॉल्ड आईओसी, इमीडिएट और कैंसिल. ठीक है. सो इन दैट केस यू कैन जस्ट गो फॉर दिस पर्टिकुलर ऑर्डर. तो आईओसी का मतलब क्या होता है, तो जैसे मतलब ऑर्डर पुट कर and it will be active just for a second. It will be active just for a second. वो particular second में अगर active मतलब execute हुआ तो ठीक, otherwise उसको cancel कर दे. ठीक है. Whenever I say good for day means what, that order will be active throughout the day. Whenever I say good till date means what, that order will be active till that particular date. And whenever I say immediate or cancel, that will be active just for some second. अगर उधर execute हुआ तो ठीक, otherwise cancel कर दे. फिर second में नहीं, fraction of second के लिए रहते हैं. And उसके बाद वो cancel कर देते हैं. Getting it? ठीक है. So these are some more orders. That is a good for day, good till date, and IOC. Understood? Yes sir. Yes. Okay. ठीक है. Any doubt in this? Good for day, good till date, and IOC किसी को भी? सर एक और रहता है शायद से मनी भाई में, गुड टिल कैंसल्ड करके रहता है शायद जीटीसी. अभी वो देखना पड़ेगा. वो डिफरेंट प्लेटफॉर्म डिफरेंट प्रोवाइड करते हैं, वो देखना पड़ेगा. क्या गुड फॉर का गुड टिल कैंसिल? हाँ सर.
यार बट वो ऐसा एक्चुअल रियल लाइफ में अवेलेबल नहीं रहता। गुड डील ऐसा होता है, तू लगा के रखा और वो लाइफ टाइम ऑन रहेगा, ऐसा नहीं होता है। जब तक तू कैंसिल नहीं करेगा तब तक ऑन रहेगा, ऐसा एक्चुअल में आई डोंट थिंक कि कौन सा ब्रोकर प्रोवाइड करता है वो सर स्क्रीन शेयर सॉफ्टवेयर। करके दिखाया आपको वो वाला ऑप्शन। चलेगा, यू कैन डू। अच्छा बट just let me finish the things and then we will see. Okay, ओके सर। fine, yeah. So these are generally you will get this kind of orders. Once again, that orders का name or the type may change depending on broker, हाँ। हर एक ब्रोकर मतलब ये सब ऐसा प्रोवाइड नहीं करता, बट ऐसे ऑर्डर्स रहेंगे, उसका नाम थोड़ा सा अलग रह सकता है। नाउ गुड टिल डेट, नाउ दिस पर्टिकुलर 5 पैसा, दिस इज कॉल्ड द वैलिड टिल डेट। ठीक है, तो थोड़ा सा नाम वगैरह चेंज होगा, बाकी कुछ नहीं। ठीक है, दिस इज कॉल्ड द डे ऑर्डर in 5 paisa. Getting it? And IOC is called the IOC only. Getting it? Okay? So that name may be the different, but function will be the same. Fine. So these are some orders. Now we will talk regarding the stop loss order. Okay. So just go to the next one. Yeah. So this was the first page. Pen. Yeah. This is it. Okay. Now once again, now we will see the another, which is the stop loss order. Now, what are the stop loss orders and all? Mainly or mostly they are for a day only. Yeah? We cannot keep it for a till date and all. Mostly they are for a they will have that what you can say that active period for a day only. You cannot just keep it this particular orders for the till date and all. Getting it? ठीक है? So stop loss order क्या रहता है? Stop loss means what? Let's suppose मैंने कुछ तो इन्फी का शेयर खरीदा है, मतलब इसके लिए ना ट्राई टू अंडरस्टैंड, इसके लिए इन्फी का मैंने शेयर ऑलरेडी मेरे अकाउंट में, ठीक है, विच आई हैव जस्ट बॉट एट पर्टिकुलर लेट्स सपोज 1750 प्राइस पे, ठीक है, 1750 प्राइस पे मैंने बाय किया, ठीक है, लेट्स सपोज 10 शेयर्स मैंने बाय किए, ठीक है, ठीक है, एंड नाउ लेट्स सपोज वो शेयर का प्राइस जा रहा है, ऊपर जा रहा है फिलहाल तो, ठीक है, बट आई एम लाइक अगर वो नीचे गया ना तो फिर मतलब इशू नॉट गो बहुत ज्यादा नीचे, एंड मतलब मेरा लॉस नहीं होना चाहिए। स्टॉप लॉस उसका नाम ही है, स्टॉप लॉस मींस व्हाट, आई जस्ट वांट टू stop my loss or I just want to minimize my loss. Getting it? Okay. So in that case, what we can do is that we can just place an order or the stop loss order. कि let's suppose 1750 है, ठीक है, try to understand, ठीक है, तो ये let's suppose फिलहाल तो 1750 प्राइस है, ठीक है, फिलहाल ऐसा बढ़ रहा है, try to understand, मतलब ये अभी 1800 तक गया, ठीक है, हाँ, बट आई विल जस्ट पुट इन्फी का लेस स्टॉप लॉस ऑर्डर के लेस स्टॉप लॉस मतलब ये इसके नीचे ही रहेगा, जिस प्राइस पे तूने बाय किया स्टॉप, व्हेनेवर से स्टॉप लॉस ऑर्डर इट कैन नॉट बी मोर देन दिस वन, व्हेनेवर से स्टॉप लॉस ऑर्डर जो भी बाय प्राइस है उसके नीचे ही रहेगा, ठीक है, तो लेट्स सपोज मैंने 1700 पे स्टॉप लॉस ऑर्डर लगाया, ठीक है, स्टॉप लॉस ऑर्डर लगाया, ऐसे नो मींस स्टॉप लॉस ऑर्डर, गेटिंग इट, ठीक है, सो व्हाट विल हैपन इज दैट नाउ लेट्स सपोज इन्फोसिस मैंने 1750 पे बाय किए, वो अगर 1900 पे गया तो गुड है, कुछ टेंशन नहीं, ठीक है, हाँ, बट लेट्स सपोज वंस अगेन कुछ तो मार्केट में क्रैश आता है और कुछ तो बैड न्यूज आता है पर्टिकुलर कंपनी और आईटी सेक्टर में, जैसे आई थिंक एक दो दिन से कुछ तो चल रहा था, आईटी सेक्टर थोड़ा डाउन जा रहा था, ठीक है, सो नाउ लेट्स सपोज इट विल जस्ट ट्राई टू फॉल डाउन, ठीक है, एंड व्हेनेवर इट विल रीच टू दैट 1700 ना, तो मेरा इन्फोसिस का शेयर बेच जाएगा, मतलब बिक जाएगा, ठीक है, सो मींस व्हाट, आई हैव जस्ट बुक अ लॉस ऑफ 500 रुपीज, ठीक है, अच्छा अगर इससे भी नीचे गया तो लेट्स सपोज 1600 पे गया तो फिर मेरा मतलब लॉस 1500 हो सकता था, ठीक है, सो व्हिच आई जस्ट स्टॉप एट 500 रुपीज ओनली, सो दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड द स्टॉप लॉस। आर यू गेटिंग इट? समझ में आ रहा है? ठीक है, तो वंस अगेन अगर मैंने इन्फो इसकी भी मैं स्टॉप लॉस ऑर्डर मतलब काम कब करता है जब तेरे पास पहले से शेयर्स है, ठीक है, सो एट दैट टाइम यू जस्ट वांट टू मिनिमाइज योर लॉस, मतलब इफ यू फील कि मतलब ये नीचे जा सकता है, आई गेटिंग इट, ये शेयर अभी नीचे भी जा सकता है, ठीक है, सो आई डोंट वांट टू मेक लॉस मोर देन 500, सो व्हाट आई विल डू इज दैट आई जस्ट पुट द स्टॉप लॉस ऑर्डर 1700, ठीक है, तो लेट्स सपोज शेयर ऊपर गया तो ठीक है, अगर लेट्स सपोज नीचे आया तो जैसे ही 1700 होगा तो वो ट्रिगर हो जाएगा एंड योर शेयर विल गेट सेल एट दैट पर्टिकुलर प्राइस, ठीक है, उसमें भी दो टाइम रहते हैं, फिर से मार्केट एंड लिमिट दैट वी विल सी डिस्कस लेटर ऑन, बट पहले ये समझो स्टॉप लॉस होता क्या है, ठीक है, तो नाउ इन दिस केस व्हाट विल हैपन इज दैट 1700 पे तेरा जो इन्फोसिस के शेयर है वो बिक जाएंगे, ठीक है, मतलब तेरा लॉस हुआ 500 का, ठीक है, हाँ, बट अगर गलती से उससे भी नीचे जाता तो लेट्स सपोज 1600 पे जाता तो मतलब उस टाइम पे तेरा लॉस फिर 1500 होता था अगर तूने स्टॉप लॉस ऑर्डर नहीं लगा होता तो, ठीक है, तो दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड स्टॉप लॉस, लॉस को मैं थोड़ा मिनिमाइज कर रहा हूँ, स्टॉप कर रहा हूँ, आर यू गेटिंग इट? ठीक है, अभी इसमें भी तो क्या बोलते हैं टाइप्स रहते हैं, मार्केट एंड लिमिट, स्टॉप लॉस मार्केट ऑर्डर और स्टॉप लॉस लिमिट ऑर्डर, ठीक है, तो स्टॉप लॉस मार्केट मतलब क्या होता है, नाउ लेट्स सपोज मैंने इन्फो स्टॉप लॉस लगाए 1700 पे एंड इफ आई जस्ट कीप इट एज अ मार्केट ऑर्डर, मार्केट पे टिक करना रहता है,
ठीक है, स्टॉप लॉस मैंने लगा 1700 पे, ये मार्केट ऑर्डर मैंने लगा, ठीक है। सो व्हाट हैपेंस इज दैट व्हेनेवर द प्राइस गोस टू द 1700, तेरा दिस इज कॉल्ड द ट्रिगर प्राइस, मतलब यू आर इन दिस स्टॉप लॉस, यू हैव टू जस्ट कीप दैट ट्रिगर प्राइस, मतलब तेरा ऑर्डर कब ट्रिगर होना चाहिए, ठीक है। सो ट्रिगर प्राइस मैंने लगा दिया 1700, ठीक है। तो जैसे ही 1700 पे होगा तेरा ऑर्डर ट्रिगर हो जाएगा, मतलब एक्टिव हो जाएगा, समझो। एक्टिव कब होगा, मतलब तेरा ऑर्डर एक्चुअली एक्टिव और ओपन कब होगा मार्केट में, ठीक है। तो जैसे ही 1700 पे आ जाएगा प्राइस, तेरा ऑर्डर ट्रिगर हो जाएगा, ठीक है। एंड उसके बाद एक्सचेंज विल स्टार्ट एग्जीक्यूटिंग योर ऑर्डर, मतलब मेरे 10 शेयर्स मुझे सेल करने हैं, ठीक है। एंड जैसे सेल करते जो भी उस टाइम पे जो भी प्राइस रहेगा उस टाइम पे वो सेल कर देगा। सो यू विल नॉट से कि हाँ 172 मतलब 1700 पे तूने ऑर्डर लगा, ठीक है। उसके बाद लेट्स सपोज उसके ऊपर भी गया कि 1725 भी गया, देन आल्सो यू जस्ट सेल इट एट 1725, ट्राई टू अंडरस्टैंड, बिकॉज़ वो ऑर्डर तेरा अभी ट्रिगर हो गया, वो एक्टिव हो गया, तो वो सेल का ऑर्डर भी एक्टिव हो गया, तो फिर मार्केट पे उस टाइम पे जो भी प्राइस रहेगा उस टाइम पे वो बेच देगा, ठीक है। या इट में गो डाउन, इट में गो अप आल्सो, ठीक है। इफ इट इज गोइंग अप तो उसको बोलते हैं स्लिपेज इन मार्केट, तो मतलब तुझे एडवांटेज मिला, 1700 पे बेचना था 1725 पे बेचा, ठीक है। या अगर वो नीचे भी जा सकता है तो 1725 मतलब 1700 पे ट्रिगर हुआ एंड लेट्स सपोज 1695 पे एग्जीक्यूट हुआ, हो भी सकता है बिकॉज़ ऑफ मार्केट ऑर्डर, उस टाइम पे जो भी मतलब एक्टिव होने के बाद जो भी प्राइस रहेगा उस टाइम पे वो बेच देगा, आर यू गेटिंग इट, उस प्राइस पे वो बेच देगा, ठीक है। एंड इफ आई जस्ट से लिमिट ऑर्डर, सो लिमिट मींस व्हाट, आई वांट टू सेल इट एट 1700 ओनली, आई वांट टू सेल इट एट 1700 ओनली, ठीक है। अभी इसमें क्या रहता है, यूएस शेयर विल गेट सोल्ड एट दिस 1700, बट अगर इस टाइम पे ना इन दिस केस टाइम टू अंडरस्टैंड, अभी ये लिमिट ऑर्डर में अगर ये उसके नीचे गया तो वो तेरा ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं होगा, समझो। लिमिट ऑर्डर का खतरा क्या है स्टॉप लॉस में, ठीक है। तो स्टॉप लॉस में मोस्टली इफ यू वांट योर ऑर्डर टू गेट एग्जीक्यूट तो मार्केट ऑर्डर लगाने का, ठीक है। एंड अगर तुझे मतलब लॉस की इतना चिंता नहीं है तो फिर लिमिट ऑर्डर लगाने का, ठीक है। Why? Because if I set the limit order, so you will sell that particular share at 1700 only, because तेरा एक्टिव कब होगा now 1700 पे, ठीक है। एंड अगर ले सपोज उसके अगर नीचे गया प्राइस तो फिर वो एग्जीक्यूट नहीं होने वाला है, ठीक है। बट मार्केट में क्या होता है, मतलब इफ आई जस्ट पुट सम मार्केट ऑर्डर तो फिर वो अगर नीचे भी गया तो भी एग्जीक्यूट होगा, गेटिंग इट, समझ में आ रहा है क्या, ठीक है। दैट इज व्हाट द डिफरेंस इन मार्केट एंड लिमिट। तो मार्केट में क्या होता है, तेरा ऑर्डर एग्जीक्यूट होने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं, ठीक है। बट प्राइस यू कैन नॉट डिसाइड, मतलब थोड़ा प्राइस यू कैन नॉट डिसाइड मींस इतना ज्यादा डिफरेंस कभी नहीं होता है इफ द शेयर इज स्टेबल, ठीक है। हाँ, बट वोलेटाइल शेयर रहेगा तो फिर डिफरेंस हो सकता है, अदरवाइज नहीं होते। हाँ, बट लिमिट ऑर्डर में क्या होता है, यू आर दैट ऑर्डर विल गेट एग्जीक्यूट एट द प्राइस व्हिच यू वांट, बट उसका चांसेस थोड़ा सा कम हो जाता है। आई विल नॉट से कि मतलब होता ही नहीं, इट जस्ट लाइक मतलब रफली, इट्स नॉट परफेक्ट, इट जस्ट लाइक इसका चांसेस 40% रहेगा तो इसका चांसेस 80% रहेगा, रफली, इट्स नॉट परफेक्ट फिगर, गेटिंग इट, ठीक है। सो दिस इज व्हाट इज स्टॉप लॉस। तो स्टॉप लॉस मींस व्हाट, जो भी प्राइस पे तूने बाय किया उसके नीचे उसके ऊपर कभी नहीं स्टॉप लॉस होता है, तो फिर तेरा शेयर बिक जाएगा फिर, ठीक है। तो नॉर्मली यू हैव टू जस्ट कीप दिस स्टॉप लॉस बिलो, जो भी बाय प्राइस है उसके बिलो ही रहेगा, गेटिंग इट, ठीक है। इफ यू आर जस्ट ट्राइंग टू कीप द स्टॉप लॉस अबव दैट तो एक्सचेंज ही तेरे को मतलब वो पर्टिकुलर ऑर्डर प्लेस करने को नहीं देगा, तेरा जो भी ब्रोकर है वही प्लेस करने को नहीं देगा, इट मींस जस्ट दैट इनवैलिड ऑर्डर करके, ठीक है। सो वंस अगेन स्टॉप लॉस मींस व्हाट, वी हैव टू जस्ट स्टॉप आवर लॉस। सो अगर लगता है कि शेयर गिर भी सकता है तो फिर स्टॉप लॉस लगा देने का, अगर ये प्राइस पे आएगा तो बिक देगा, ठीक है। हाँ, मगर उससे अगर नीचे जाएगा तो अपना स्टॉप थोड़ा अपना लॉस थोड़ा स्टॉप हो जाता है, गेटिंग इट। सो दैट्स व्हाई स्टॉप लॉस ऑर्डर। तो इसमें दो टाइप है, मार्केट एंड लिमिट, ठीक है। मार्केट मींस व्हाट, जो तूने ट्रिगर प्राइस रखा होता है, जिस प्राइस पे जो सेल करना है उस टाइम पे वो एक्टिव हो जाएगा एंड उसके बाद जो भी प्राइस रहेगा उस पे बेच देगा। लिमिट मींस व्हाट, मुझे इसी प्राइस पे बेचना है, अगर इससे अगर ड्रास्टिकली नीचे गया तो खत्म, तो फिर एग्जीक्यूट ही नहीं होगा। हाँ, मतलब उसके बाद फिर से ऊपर आके 1700 हुआ तो फिर हो जाएगा, getting it means what, whenever I say the stop loss limit order, so we just execute at this particular price only 1700, fine, understood। stop loss में दो टाइप है, मार्केट एंड लिमिट, have you understood both, and stop loss का मीनिंग क्या होता है and how to use this one, Yes, sir. ठीक है। सो नॉर्मली ये स्टॉप लॉस वगैरह कैसे रहता है, दिस इज यूज्ड बाय द ट्रेडर्स, मतलब जो डेली ट्रेडर्स इन द सेंस, बिकॉज इन अ मार्केट the people who actually put their money in a share market na, they are either classified as a traders or investors। ट्रेडर्स मींस व्हाट, जो बाय एंड सेल करना चाहते हैं, मतलब उसी दिन पे बाय सेल करेंगे तो उसको मोस्टली ट्रेडर्स बोलते हैं, ठीक है। एंड दोज हु आर जस्ट बाइंग एंड कीपिंग फॉर द लॉन्ग टाइम, दे आर कॉल्ड एज इन्वेस्टर्स, ठीक है। सो दिस इज द स्टॉप लॉस एंड ऑल दैट विल बी यूज्ड बाय द ट्रेडर्स, ठीक है। तो लेट्स सपोज अभी इन्फोसिस का प्राइस मेरा कुछ तो 17 कुछ भी, आई डोंट नो रियल प्राइस अभी क्या है, तो 1720 पे चल रहा है, तो मैंने लेट्स सपोज 1720 पे बाय किया, ठीक है। ट्रेडर ने बाय किया एंड उसको आज के दिन ही बेचना है, ठीक है। तो वो क्या करेगा, वो स्टॉप लॉस एक लगा के रखेगा कि मतलब अगर गलती से अगर नीचे का तो बाबा ज्यादा लॉस नहीं होना चाहिए, यानी स्टॉप लॉस लगा के रखेगा कि बाबा अगर इससे भी ज्यादा 1700 के नीचे का तो बाबा बेच दे, ठीक है। हाँ, अगर ऊपर गया तो ही विल वेट, एंड जैसे देखो तो 1900 वगैरह हो गया तो उस टाइम पे मुझे बेचना है,
ठीक है, तो उसके लिए भी ऑर्डर्स रहते हैं। अब वो कैसे रहते हैं, ट्राई टू अंडरस्टैंड अभी द नेक्स्ट टाइप, लेट्स सी कैसे रहते हैं। नाउ देयर आर टू मोर ऑर्डर व्हिच इज कॉल्ड द कवर ऑर्डर एंड द ब्रैकेट ऑर्डर। ठीक है, नाउ वंस अगेन दैट डिपेंड्स ऑन अ ब्रोकर, वो प्रोवाइड करता है कि नहीं ये सब ऑर्डर्स। ठीक है, सो वी आर हैविंग अ ब्रैकेट ऑर्डर और यू मे से द कवर ऑर्डर। फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज द कवर ऑर्डर। Now what is the cover order is that, now as I told this is used by the traders, मतलब जो एक दिन में बेचना और खरीदना चाहते हैं। ठीक है, कीप इन माइंड स्टॉप लॉस इज द डिफरेंस। स्टॉप लॉस इज व्हाट मींस तेरे अकाउंट में पहले से शेयर्स है, तूने पहले से बाय करके रखे, एंड देन टू मिनिमाइज योर लॉस यू आर जस्ट पुटिंग अ स्टॉप लॉस ऑर्डर फॉर दैट पर्टिकुलर शेयर। ठीक है, अभी कवर ऑर्डर क्या होता है, मेरे पास नहीं है, मैं बाय करने वाला हूँ। ठीक है, आई वांट टू बाय एंड उसके बाद टू मिनिमाइज दैट लॉस आई एम जस्ट पुटिंग द स्टॉप लॉस ऑर्डर आल्सो। मींस व्हाट, नाउ दिस कवर ऑर्डर में दो ऑर्डर्स रहते हैं। ठीक है, एक बाय ऑर्डर भी रहता है और एक स्टॉप लॉस ऑर्डर भी रहता है। Are you getting it? ठीक है, means what is just like this one कि let's suppose I just put like this, means cover order कैसे होता है, I just want to buy Infosys, let's suppose अभी Infosys का प्राइस जैसे 1750 चल रहा है, try to understand। ठीक है, so I want to so whenever I say the cover order you have to put that two price, buy price and a stop loss price। ठीक है, so let's suppose I just want to buy this particular Infosys at 1725, 1750 पे प्राइस चल रही है, तो 1725 पे मुझे बाय करना है। अदरवाइज यू मे जस्ट कीप द सेम प्राइस, रखो मतलब मार्केट प्राइस भी रख सकते हो, उस प्राइस पे एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है, एंड यू कैन जस्ट पुट अ स्टॉप लॉस आल्सो, मींस व्हाट एट इन वन ऑर्डर यू आर जस्ट पुटिंग बोथ, बाय ऑर्डर भी डाल रहे हो और स्टॉप लॉस भी डाल रहे हो, एक ही ऑर्डर में दोनों आ जाएंगे। ठीक है, सो 1750 दिस एलटी पे इन्फोसिस का, गेटिंग इट, एंड आई जस्ट वांट टू बाय एट दिस पर्टिकुलर 1725 एंड मेरा स्टॉप लॉस लगाऊंगा मैं 1700 पे। गेटिंग इट, अगर ये प्राइस पे आया तो बाय कर देगा। ठीक है, अगर ये प्राइस पे आया तो मैं उसको मतलब 1725 पे खरीदा 1700 पे बेच देगा, तो 25 रुपीज का मुझे लॉस हो जाएगा। एंड अगर उसके ऊपर गया तो फिर वो बेचेगा नहीं, तो बाद में मतलब मेरे ऊपर रहता है कब मुझे बेचना है। गेटिंग इट, ठीक है, सो नॉर्मली इफ यू आर जस्ट डूइंग इंट्राडे ना, तो नॉर्मली पीपल जस्ट यूज दिस स्टॉप लॉस, मतलब अगर लॉस भी हो तो उसको मिनिमाइज करने के लिए दे जस्ट यूज द स्टॉप लॉस ऑर्डर। गेटिंग इट, ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड अ कवर ऑर्डर इन व्हिच वी आर हैविंग अ बाय प्लस स्टॉप लॉस, एंड देयर इज अ वन मोर एडवांस ऑर्डर व्हिच इज कॉल्ड द ब्रैकेट ऑर्डर। वंस अगेन दैट डिपेंड्स ऑन अ ब्रोकर, वो प्रोवाइड करता है कि नहीं। अब ये ब्रैकेट ऑर्डर क्या रहता है, व्हिच इज द एडवांसमेंट ऑफ दिस कवर ऑर्डर। सो द लास्ट ऑर्डर ऑफ द डे, ब्रैकेट ऑर्डर। ठीक है, नाउ ब्रैकेट ऑर्डर इज व्हाट, कवर ऑर्डर प्लस टारगेट प्राइस, ये सबसे बेस्ट रहता है इंट्राडे के लिए। ठीक है, अब ये कवर ऑर्डर प्लस टारगेट प्राइस क्या रहता है, जस्ट लाइक दिस। नाउ इन दिस केस वी हैव टू प्लेस थ्री प्राइस। ठीक है, एक टारगेट प्राइस, एक बाय प्राइस और एक स्टॉप लॉस प्राइस, और यू मे से द ट्रिगर प्राइस, जो भी बोलते हो। ठीक है, सो इन दिस ब्रैकेट ऑर्डर यू हैव टू प्लेस थ्री, ट्राई टू अंडरस्टैंड। ठीक है, मतलब वंस अगेन इन्फोसिस आई विल कंसीडर, इन्फोसिस का प्राइस चल रहा है 1750, समझो। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, मेरा बाय प्राइस है, मुझे बाय करना पर्टिकुलर शेयर 1725 पे। ठीक है, मेरा टारगेट है let's suppose 1800. Now this is for a day only, a bracket order and this particular orders they just works for a day only, there is like there is nothing like validity date। ठीक है, so once again that depends on a broker but normally इसमें validity date नहीं रहता। ठीक है, so Infosys if I say now this particular Infosys का LTP is let's suppose 1750, getting it, I just want to buy at 1725 and उसका target price मैंने 1800 रखा and stop loss I'm just keeping at 1700। ठीक है, अब क्या होगा कि ना अब ये तेरा ऑर्डर एक्टिवेट हो गया फॉर अ डे। ठीक है, नाउ व्हेनेवर दैट 1750 बिकम्स 1725, समझे, तेरा बाय ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा, मतलब तू बाय करेगा जितने भी नंबर ऑफ शेयर है वो बाय हो जाएगा। ठीक है, अभी उसके बाद 1725 पे आ गया, लेट्स सपोज 1725 पे मेरा बाय हो गया। ठीक है, उसके बाद लेट्स सपोज इफ दिस प्राइस गोज अबव एंड जस्ट रीच एट 17 लेट्स सपोज 90। ठीक है, 90 पे गया, ट्राई टू अंडरस्टैंड। ठीक है, 90 पे गया, उसके बाद फिर से फॉल होने लगा। ठीक है, एंड फॉल होके जस्ट रीच एट 1700, समझो। ठीक है, तो जैसे ही 1700 पे आएगा तेरा ऑर्डर बिक जाएगा, और दिस पर्टिकुलर जो भी तूने शेयर्स खरीदे वो बिक जाएंगे। ठीक है, एंड जैसे मतलब ये स्टॉप लॉस का ऑर्डर अगर तेरा एग्जीक्यूट हुआ तो टारगेट का ऑर्डर कैंसिल हो जाता है। नाउ इन दिस केस इन दिस पर्टिकुलर मींस ये तीन ऑर्डर मैंने लगाए टारगेट, बाय एंड सेल के, तो बाय का तो एक्चुअली मतलब एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, एंड बाय अगर एग्जीक्यूट हुआ उसके बाद इधर टारगेट ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज स्टॉप लॉस ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा, दोनों में से एक ही होगा, दोनों कभी नहीं होते, दोनों में से एक ही होगा। दैट इज कॉल्ड द वन, दिस आल्सो कॉल्ड द वन कैंसिल अदर। अगर मतलब मेरा टारगेट प्राइस का मतलब ये पर्टिकुलर ऑर्डर एग्जीक्यूट हुआ तो फिर ये कैंसिल हो जाएगा, अगर ये अगर एग्जीक्यूट हुआ तो ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, मींस व्हाट, अगर मैंने इन्फोसिस बाय किया तो लेट्स सपोज मेरा ऑर्डर एग्जीक्यूट हुआ 1725 पे, तो बाय हो गया। ठीक है, एंड उसके बाद प्राइस गया लेट्स सपोज 1790 एंड उसके बाद ड्रॉप हुआ 1700। ठीक है, सो दिस ऑर्डर विल गेट एग्जीक्यूट स्टॉप लॉस का, और ये कैंसिल हो जाएगा।
ठीक है. नाउ लेट्स सेकंड सिनेरियो इज दैट लेट्स सपोज मैंने 1725 पे बाय किया, ऊपर चलता गया 1800 हिट किया. जैसे 1800 हिट करेगा इट विल गेट एग्जीक्यूट, मतलब मेरा अभी सेल हो जाएगा. सेल मींस व्हाट, मैंने 75 रुपीस का प्रॉफिट कमा लिया. ठीक है. एंड ये स्टॉप लॉस का ऑर्डर कैंसिल हो जाएगा. दिस आल्सो कॉल्ड एज अ वन कैंसिल अनदर. ठीक है. तो ब्रैकेट ऑर्डर इज द बेस्ट फॉर इंट्राडे. इफ यू आर यूजिंग इंट्राडे, करना तो नहीं है अपने को, बट इफ यू आर डूइंग इट देन यूज अ ब्रैकेट ऑर्डर. मतलब मैं 22 पे करेगा, अगर इतना प्राइस पहुंचेगा तो सेल कर दे, अगर इतना अगर पहुंचेगा तो सेल कर दे, स्टॉप लॉस पे सेल कर दे, बोथ. ठीक है. So this is how we can just put that bracket order also for the intraday. मतलब intraday मतलब वो for that particular day only. Getting it? ठीक है. So is the difference in the cover order and bracket order. Cover order में stop loss रहता है, मैं टारगेट नहीं करता. because अभी इसमें मतलब दोनों में भी डिफरेंस कैसे. now let's suppose अगर तेरा शेयर 1800 से ऊपर भी गया, तो if you have just use a cover order तो फिर तेरा सेल नहीं होगा, मतलब you can just book that मतलब higher profit also. ठीक है. but if you just put a bracket order तो 1800 में तेरा सेल होगा ही होगा, तो मतलब तेरा अभी प्रॉफिट 75 रुपीस का रहेगा, उसके ऊपर नहीं रहेगा. ठीक है. तो दैट डिपेंड्स ऑन ट्रेडर्स का रिस्क, उसको कितना रिस्क लेना है, तो दैट डिपेंड ऑन दैट दे विल जस्ट पुट ईदर कवर ऑर्डर और द ब्रैकेट ऑर्डर. गेटिंग इट. ठीक है. सो दिस आर ऑल टाइप्स ऑफ ऑर्डर्स एंड वन मोर इज देयर दैट इज कॉल्ड एएमओ, दैट इज आफ्टर मार्केट आवर, आफ्टर मार्केट ऑर्डर. ठीक है. सो नाउ लेट्स सपोज इफ यू वांट टू जस्ट एग्जीक्यूट द, इफ यू डू नॉट गेट टाइम इन बिटवीन द 9:15 to 3:15, in that case what to do, because most of the people are working in this particular time. Okay, and if they want to just buy and sell a share, then in that case what they will do. Okay, so then in that case they just go with the AMO, that is after market orders. Means they can just place order after 3:30 up to the next day का I think 9 AM तक, कुछ तो 9 AM के पहले रहता है, but let's suppose roughly अभी से 3:30 PM to the next day का let's suppose 8:30 AM. Okay, so we can just put order in this particular time also. So that is called the AMO, that is after market order. But this particular order will get executed, or you may it will get activated. It will get activated after the 9:15 only, 9:15 AM of next day. Are you getting it? So this is called the AMO, after market order. ठीक है. Means I will just put it after 3:30 जब market close हो जाएगा, और after the 4 PM मैं घर पे जाके मस्त पे के एनालिसिस करेगा एंड मार्केट ऑर्डर प्लेस करेगा. ठीक है. But this order will get executed, or it will get active when on the next day after 9:15 AM. Getting it? ठीक है. So that is called the AMO. ठीक है. So these are all types of orders which we can come across while doing a trading. ठीक है. एंड बंदे लोग को ये ऑर्डर्स भी नहीं पता रहते, जस्ट वो बाय करते हैं एंड सेल करते हैं, खत्म. बट दे डू नॉट नो कि स्टॉप लॉस करके भी रहता है, ब्रैकेट ऑर्डर भी रहता है. ऐसा ये सब ऑर्डर से उसका यूज करो. वैलिडिटी डेट, दिस इज द ऑर्डर व्हिच आई यूज द मोस्ट. वैलिडिटी डेट मैं जस्ट लगा के रख देता हूं, खत्म. बिकॉज़ आई आल्सो डोंट गेट टाइम टू वॉच द मार्केट कंटिन्यूअसली, तो वैलिडिटी डेट यूज करने का, खत्म. एंड नॉर्मली जस्ट गो फॉर डिलीवरी ऑर्डर, नॉट फॉर इंट्राडे ऑर्डर. डिलीवरी मतलब लॉन्ग टर्म के लिए, ये इंट्राडे के लिए वगैरह मोस्टली करने का नहीं. मतलब ब्रैकेट ऑर्डर, कवर ऑर्डर, दो यू नो दैट मोस्टली यूज नहीं करने का. अगर आपको मतलब वो ट्राई करना है तो फिर जस्ट ट्राई ऑन मनी बाय, बिकॉज उधर अपना एक्चुअल पैसा नहीं है, तो यू विल सी कि मतलब क्या बोलते हैं कि मेरा लॉस हो रहा है कि प्रॉफिट हो रहा है. एंड इफ यू लाइक कि मतलब यस मेरे प्रेडिक्शंस बहुत ज्यादा अच्छे जा रहे हैं इंट्राडे में, तो फिर यू कैन डू इट एंड यू कैन जस्ट अर्न मनी डेली बेसिस पे. ठीक है. बट नॉर्मली दैट इज नॉट ट्रू. मतलब मोस्टली लोग डेली बेसिस पे इतना ज्यादा कमाते नहीं है. मतलब नॉर्मली ये 60% लोगों का लॉस ही होता है, 40% ही रहते हैं जो मतलब सक्सेस कर पाते हैं, बट 60% लॉस ही करते हैं. गेटिंग इट? ठीक है. सो दैट्स ऑल रिगार्डिंग द मार्केट ऑर्डर्स. एनी डाउट? नाउ द फोरम इज ओपन टू यू. आई हैव जस्ट डन फ्रॉम माय साइड. I'll just stop the recording. Yeah.